নমস্কার, সালাম, আদাব। নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহপ্রতিনিধি দীপ্ত বিশ্বাস। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি ধনতলা যে বাইপাস রোড রয়েছে, সেই বাইপাস রোডে চিকিৎসার জগতে ফের জনগণকে পরিষেবা দিতে শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে লাইফ লাইন নার্সিং হোমের, যেখানে দিবারাত্র 24 ঘন্টা পরিষেবা দেওয়ার জন্য নার্সিং হোম খুলে দেওয়া হয়েছে গাইশাল এলাকাতে। সেখানে আজকের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন ইসলামপুরের জনপ্রিয় বিধায়ক চৌধুরী। তার পাশাপাশি এখানে রয়েছেন ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আব্দুল করিম लाइफ लाइन नर्सिंग होम की जानिब से मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं जनाब चौधरी साहब के लिए, जनाब चौधरी अब्दुल करीम साहब के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत है लाइफ लाइन नर्सिंग होम के आज के इस इफ्तिताही प्रोग्राम में, आज के इस ओपनिंग सेरेमनी में जनाब शेख अनवर, उनके भाई, उनके वालिद और तमाम उनकी टीम की तरफ से, धनतला के तमाम नौजवानों की तरफ से, धनतला के तमाम आवाम की तरफ से जनाब चौधरी अब्दुल करीम साहब का जोरदार स्वागत है आज के ओपनिंग प्रोग्राम में, आज के इस लाइफ नर्सिंग होम के ओपनिंग प्रोग्राम में, इफ्तिताही प्रोग्राम में जनाब चौधरी करीम साहब का पुरजोर इस्तकबाल है, पुरजोर स्वागत है। हम उनका दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं लाइफ लाइन नर्सिंग होम চেষ্টা করবো। আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী মহাশয় প্রত্যেকটা নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এই চৌধুরী সাহেব এই মুহূর্তে লাইফ লাইন নার্সিং হোম ধনতলা বাজারে যার শুভ উদ্বোধন করলেন ইসলামপুরের জনপ্রিয় বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। সরাসরি সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আমরা তার সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। চেষ্টা করবো আব্দুল করিম চৌধুরী প্রধান অতিথি রয়েছেন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক। চৌধুরী সাহেব, যে বিষয়টা জিজ্ঞেস করবো, ধীরে ধীরে আপনার বিধানসভায় কিন্তু আর্থসামাজিক উন্নতি হচ্ছে এবং আজকে এখানে ধনতলার মতো একটা মফস্বল এলাকা গাইশালে একটা নার্সিং হোম, বলা যেতে পারে একটা সিটি লেভেল নার্সিং হোমের উদ্বোধনে আপনি এসেছেন, কি বলবেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে? আমি তো এই প্রথমে সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই নার্সিং হোমের যে মালিক এবং অর্গানদের এবং তার সমস্ত সঙ্গীদের, আমাদের ধনতলার সকলকে, আমাদের প্রধান সাহেব হাজি সাহেব যে আছেন সবার সকলকে আমি অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সঙ্গে সঙ্গে বলছি যে এটা খুবই বিরাট খুশি আনন্দের ব্যাপার যে লোক শহরের মধ্যে যায় কোনো বড় প্রতিষ্ঠান করতে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই ছেলেরা যারা অ্যাব্রোড মানে বিদেশে গিয়ে কামাই করে, কোনো ব্যাংক থেকে এখানে লোন তো নেয়, কামাই করে ওরা নিজের টাকা কোনো শহরে যায় না খরচা করে, আমাদের নিজের এলাকায় নিজে করেছে, নিজের গ্রামে করেছে। ধনতলা বাজারে একটা নতুন একটা নতুন শহর হচ্ছে। আমি মমতা ব্যানার্জিকে বলেছিলাম যে পাঞ্জিপাড়া, ধনতলা এগুলোকে আপনি মিউনিসিপ্যালিটির একটা চান্স দেবেন করতে, কারণ এগুলো একটু গ্রোয়িং টাউন আছে এগুলো। তো আমি এটা দেখে খুব খুশি হলাম যে এই যে ছেলেটা আমাকে বলতে নোটের মধ্যে গেছিলো পার্টি অফিসে, যে শেখ আনোয়ার, সে বললো যে এরকম গ্রাম নার্সিং হোম করতে। তার আগে আমি শুনেছিলাম যে বহু টাকার পরিমাণ দিয়ে করতে, 5 কোটি টাকা 6 কোটি টাকা। আমি খুব খুশি, ছেলেরা ওরা টাকা পেলো, বলতে যে আমরা দুবাই থেকে কামাই করে আমরা আর এখানে খরচা করতেছি। তো কত খুশির ব্যাপার আছে যে ওখানকে কামাই করে ওরা এখানে ইনভেস্ট করতেছে নিজের গ্রামেই। এটা বিরাট আনন্দ ব্যাপার, তাদের ওদের সাব্বাসী দেওয়া ব্যাপার। আমি ওদের সাব্বাসী দিদি কংগ্রেচুলেশন দিচ্ছি, যেরকম করে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকার ছেলেরা যদি এরকমই চিন্তা ভাবনা করে নিজের এলাকার উন্নয়ন করার জন্য বাইরে থেকে কামাই করে আসবে আর এখানে নিজে খরচা করে এখানে লোকের সুবিধা দেবে, এটাই সরকারের তো অর্ধেকটা কাজ আরে তোমরা দিবে।
সরকারের অর্ধেক টাকা আমি সেদিন বলছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটা আমি আবেদন পাঠাবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একদম কত ভালো খবর দেখেন, তোমাদের ছেলেরা আপনি উৎসাহের জন্য কিছু পাঠান, এখানে কোনো সাবসিডি কিছু দেন আপনি এদের কিছু ক্ষতি করার জন্য, যে এরা আরও কিছু ভালোভাবে কাজটা করতে পারে, সরকারি লেভেলে কোনো ফ্যাসিলিটি যে পায় সেটা আপনি করবেন। তো এই জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি এই যে আমাদের শেখ আনোয়ার এই ধনতলা বাজারে এটা নতুন উত্তর, এটা খালি ধনতলায় না, এটা চলে আসবে এদিকে বিহারের লোকগুলো, এদিকে চলে আসবে আমাদের পাঞ্জিপ্রা থেকে গল্পপুর থেকে লোক, এদিকে যেগুলো সাথে আছে যারা ইসলামপুরে ইসলামপুর আটকিবে, কিন্তু আজকাল সমস্ত লোক তো এখানেই আসবে। যেটা আমি শুনলাম যে সেটা করেছে যে অত ফ্যাসিলিটি দিব আমরা যে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এখানেই আসবে। খুব আশ্চর্য ব্যাপার আছে যে কিষানগঞ্জ থেকে বা আমাদের কিষানগঞ্জ থেকে বেশি লোক চলে যায় পূর্ণিয়া, বেশি লোক চলে যায় কাঠিয়ার, অন্য অন্য জায়গায়। এই যদি ওই লেভেলে যে নার্সিংহোম আমার এই ছেলেগুলো করে প্রায় লাইফ লাইন নার্সিংহোম করেছে, আমি বলছি লাইফ লাইন লাইফ সেভিং নার্সিংহোম করুন, লাইফ সেভিং নার্সিংহোম। হ্যাঁ, তো এই যে লাইফ সেভিং নার্সিংহোম বা লাইফ লাইন নার্সিংহোম এটা করেছে ওরা। তো এরকম করো যে সব রকম ফ্যাসিলিটি, যেতে হবে না পূর্ণিয়া, যেতে হবে না কাটিয়ার, যেতে হবে না শিলিগুড়ি, নিউটিয়া, পুটিয়া, সব এখানেই করো। এটাই আমি উৎসাহ দিয়েছিলাম প্রতিদিন। আমি রিয়েলি আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি আজকের এই উদ্বোধন করে। আমাদের সঙ্গে এখানে ডব্লিউ প্রধান আছে, যেটা প্রবীণ নেতা আমার সঙ্গী আছে, ওর বহুদিন থেকে আমার সঙ্গী আছে। আমার আরও লোকগুলো আছে, প্রবীণ লোকগুলো এখানে আমাদের ওই আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আছে হিমায়ত সাহেব, এখানে কাসিম মাস্টার আছে, আরও লোকজন আছে, আমাদের গরিব মাদার চৌধুরী। এদের এখানে আপনাদের সমগ্র কাজেই ভালো থাকতেছে আপনারা সকলেই। আপনি ভাই আচ্ছা, এখানে ডাক্তার ফাক্তার কোথা থেকে আনবে, কী আনবে? ইউ মাস্ট ব্রিং দি ডাক্তার, ভারী লোকটুকু। ভেলোরের ডাক্তার একদিন কাছে মাসে একবার নিয়ে আসে, কলকাতার বড় বড় ডাক্তার এক মাসে একদিন কাছে নিয়ে আসে। অ্যাটলিস্ট অনেক কথা বলবে। আমি দেখলাম সেদিন, আমি রায়পুরে তো হসপিটালে চিকিৎসা করলাম, আসলাম চিকিৎসা করে দেখে আসতেছি। এখন বলতেছি যে আমি যে বারবার আসতে পারবো না। স্যার আপনি কাজ করেন, ভিডিওটা আমার রাখেন, ভিডিওতে কোথাও বলে দেবো, ভিডিওতে তো কোথাও বলা যাচ্ছে, ভিডিওতে তো ডিপেন্ড দেওয়া আছে। ওইরকমই এরা ডাক্তার, ভালো ভালো ডাক্তারকে যোগাযোগ করলেই ভালো। আমি একটা দেখলাম কি, ওই একটা লোক প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন করলো, ও খুঁজতে মালদায় পেল না কোনো চান্স, পূর্ণিয়ায় পেল না চান্স, ও কাঠিয়ারে গেল। কাঠিয়ারে ডাক্তার কি, একটা ডাক্তার মাসে একবার আসে, কোথা থেকে, ভেলোর থেকে আসে, ওই এক্সপার্ট এই প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন করার জন্য। ওর কাছে ভর্তি হলো, ভালো হয়েছিল। ওইরকমই এরকম এক্সপার্ট গ্রুপ মানে ধরে আনো যে লোকগুলোকে বাইরে যেতে না হয়। বাইরে গেলে অনেক খরচা ফরচা আছে, থাকার ব্যবস্থা আছে, পরিবারগুলো সঙ্গে যাচ্ছে, অনেক কিছু করছে। এই জন্য আপনাদের আমি এইগুলো ছেলেকে উৎসাহ দিব, যত যখন দরকার, যে সময় দরকার, আমিও চেষ্টা করবো মাসে 2 মাসে একবার ভিজিট করবো যে কেমন কাজগুলো চলতেছে। এখানে প্রয়োজন থাকলে আমি এখানকার এই নার্সিংহোমের উন্নতির জন্য অনেক রকমের ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো। বললাম এমএলএ সাহেব, একটা বিষয় হচ্ছে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানে আপনাদের যে সরকার রয়েছে, তাদের একটা স্বপ্নের প্রকল্প হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী। এই নার্সিংহোমের উদ্বোধন করছেন, এখানে যাতে স্বাস্থ্যসাথীতে চিকিৎসা পাওয়া যায়, সেটা কতটা সহযোগিতা থাকবে? আমাদের ডাক্তাররা যা আছে, ডাক্তার আমাদের নার্সিংহোমের মালিকরা, ডাক্তার তো রান পারবে না, নার্সিংহোমের মালিকরা যারা আছে তাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলে দিয়েছে যে আপনাদের যে টাকা, ওই পরিমাণ টাকা আপনারা পাবেনই তো সরকারের থেকে, খালি বিলটা পাঠাই দেবেন হয়ে গেল। এইটা টাকাটা এখানে নগদ না নিয়ে আপনারা বিল ভোটেরটা পাঠিয়ে দেবেন, টাকাটা পেয়ে যাবেন। এইটা ভয় পাচ্ছে না পাবো না, পাবেন টাকাটা। যখন একটা গ্যারান্টি বিল আপনাকে স্বাস্থ্য কার্ড দিচ্ছে, সেই কার্ডটা ভ্যালুয়েবল কার্ড, কোনো চিটিং কার্ড না, ভ্যালুয়েবল কার্ড, গভর্নমেন্টের কার্ড, তাকে দিতেই হবে। এই জন্যে আমি নার্সিংহোমের যারা মালিকরা আছে তাদের আমি বলবো যে কোনো ভয় নেই, আপনাদের পেমেন্ট যদি কোনো যেমন দেরি হয় তা আমি সেটা ইন্টারভিউ করে দেখব। এই জন্যে আমাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখালে আপনি চিকিৎসাটা দিবেন। ধন্যবাদ। আমরা কথা বলবো এখানে যিনি প্রধান এর প্রতিনিধি রয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একটা বিশিষ্ট নেতৃত্ব সাব্বির সাহেব, অর্থাৎ ডাব্লিউ প্রধান, তার সঙ্গে কথা বলবো। ডাব্লিউ ভাই,
धीरे धीरे आपका जो पंचायत है वो उसका तरक्की बरकत हो रहा है। जैसे कि देखा गया, सबसे बड़ी बात है बेंगल टू बेंगल जो बाईपास रोड है वो आपका ही टेन्योर में ही स्टार्ट हुआ था और अभी कंप्लीशन होने जा रहा है। साथ ही साथ इसी बाईपास रोड में आज एक निजी संस्था, एक नर्सिंग होम, लाइफलाइन नर्सिंग होम का उद्घाटन पे आप आए हैं एमएलए साहब के साथ, क्या कहेंगे? आज आप लोगों के माध्यम से अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ, जो मेरा अंचल में आज बेंगल टू बेंगल रोड जो कि धनसोला से बोतलबाड़ी तक हम लोग शुरू कर पाए हैं, काम हो रहा है और इंशाल्लाह कुछ दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा। और उसी रोड के ऊपर आज ये लाइफलाइन नर्सिंग होम, जिस दिन हमारे पास अनवर बाबू नर्सिंग होम के लिए नो ऑब्जेक्शन एनओसी के लिए आए, मैं उसको बहुत मुबारकबाद दिया। हम उनका हौसला का बहुत ही स्वागत किया, जो तुम आज ये काम करने जा रहे हो। हमारा पूरा पंचायत बॉडी तुम्हारा साथ है, तुम आगे बढ़ो, जहाँ जो दिक्कत आएगी हम लोग जो है तुम्हारा साथ देंगे। और मैं आज अनवर बाबू को तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ, जो आज हमारा धनसोला जैसा जगह गैसल 1 जीपी के अंदर में जो वो काम करके दिखाया है। मैं ये भी कहूँगा, जिस तरह से काम किया है वो लोगों का जो है परिसेवा सेवा करते रहे, हम लोग उनके साथ हैं। हमारे चौधरी साहब उनके साथ हैं, हमारे एमएलए बहुत सीनियर नेता पूरा वेस्ट बंगाल का, हम लोग एक साथ हैं। जो जहाँ जो भी मदद लगेगा उनको जो है हम लोग मदद करेंगे। और मैं आप लोगों का माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले एक हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा है। हमारे अंचल में एक हॉस्पिटल 10 बेड हॉस्पिटल का हमने जो है रेजुलेशन करके पंचायत से जो है हमारे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं उनके जरिए से हम जो है नवान्न तक उनको भेजे हैं उस प्रपोजल को। और उम्मीद करते हैं कि मेरा लाइफ में वो काम अगर हम कर दे पा रहे हैं, इससे पहले बहुत सब काम हम आज 83 से लेके अब तक मैं ये पंचायत का सेवा में हूँ। पंचायत के लोग हमको दुआ दे रहे हैं, हमको दुआ दिए हैं, हम उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों का सेवा करते आ रहे हैं 1983 से लेकर आज के डेट तक। मैं यहाँ धनतोला बाजार कायम किया है। बहुत बड़ा गड्ढा था धनतोला बाजार में, बाजार बोल के कुछ था ही नहीं। मैं वो बाजार कायम कर पाया है धनतोला बाजार को। उसके बाद यहाँ सबसे पहले मिनी बस स्टॉपेज हम ही ने कराया था। आज कुछ दिन पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट वेस्ट बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट का स्टॉपेज हम ही ने पहल करके कराया है। आज यहाँ हमारा अंचल में 10 पेट्रोल पंप हम जो है करा पाए हैं। बेंगल टू बेंगल रोड करा हो रहा है हमारे यहाँ से। आज नर्सिंग होम हो रहा है, रेस्टोरेंट हो रहा है। यहाँ जो है इस तरह का माहौल है, जो लोग यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं और हम लोग उनको जो है मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मदद कर रहे हैं, जहाँ तक होगा हम लोग इससे आगे, हम लोग यहाँ का अवाम तमाम लोग ये नर्सिंग होम को जिस तरह से भी आगे बढ़ाया जाए हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। बात करेंगे ऑनर जो फाउंडर है यहाँ के इस्लाम साहब जनाब, उनसे बात करेंगे। बहुत एक खुश नसीबी है आप लोगों के लिए कि आपका 2 होनहार बेटा यहाँ कह सकते हैं कि सिटी लेवल का एक नर्सिंग होम आज धनतोला बाजार के आवाम और इलाके के दिग्गज जो आवाम है उनको तोहफा के तौर पर दिया इलाज के लिए। क्या कहेंगे, कल क्या महसूस कर रहे हैं? इस मजलिस में जितने भी लोग आए हुए हैं, पहले सभी को हमारा सलाम अर्ज कबूल है और बाकी लोगों को नमस्कार। आप सभी से हमारा यही गुजारिश है कि आज जो हम लोग इस स्टेज में खड़े होकर आप लोगों का सामने जो भी कहने का लायक हुए हैं, पहला तो हम ये कहेंगे कि इसका असली मकसद हमारे तरफ से अल्लाह का हुक्म से, और दूसरा और जो यहाँ का जितने भी आवाम है
और जितने भी हमारा जनाब बड़े बड़े उलमा हैं और जितने भी हमारे बड़े बड़े यहाँ का लोग हमारे सेवा किए। और इसके बाद हमारा लड़का लोग जो है अल्लाह का हुक्म से तो हुआ ही है, लेकिन बड़ों का दुआ दरूद से भी कामयाबी किया। और हमारा लड़का जो भी काम किए हैं ये उन लोगों का मेहनत और मुशक्क़त के बाजार से ये काम बनी है। और आगे ये भी कहूँगा कि अल्लाह ताला ने आप सभी का दुआ को कबूल करे और अल्लाह ताला का हुक्म से हमारा लड़का लोग जो सोचा है इससे और भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। और एक बात ये है, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं इस मजलिस के अंदर, हमारे बड़े बुजुर्ग सब दुआ करेंगे कि हमारे लड़का का ऊपर जो है जो भी बलाए मुसीबत आने वाला को दूर कर दे। और आप सभी का अनुरोध से हम ये कहेंगे कि आप लोग जो कीमती समय को निकाल कर यहाँ पर आए हैं, आज ये कीमती समय का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं और इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे जो ऑनर हैं अनवर भाई। बहुत बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इसीलिए कि धनतोला जैसे एक मुफस्सल जगह में आपने एक सिटी स्टैंडर्ड का नर्सिंग होम को लोगों के परिसेवा के लिए आज उद्घाटन किया। क्या कहेंगे इस शुभ अवसर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने काबिल समझा कि हम इसके लिए काम कर सकें। दूसरी बात, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब चौधरी साहब जो हमारे एमएलए बहुत ही सीनियर लीडर हैं हमारे, और शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे नाना का डब्ल्यू प्रधान साहब का जो कि हमारे गैसल 1 ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और काफ़ी सीनियर लीडर हैं हमारे। और इस नर्सिंग होम को बनाने में जो भी मतलब ऑफिशियली लीगल प्रोसीजर का ज़रूरत था उसमें जो है काफ़ी हेल्प मिला मुझे। और मैं गैसल 1 ग्राम पंचायत का हमारे जो जितने भी लीडर्स हैं और पंचायत बॉडी का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों के हेल्प और सपोर्ट के बगैर मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम था और तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है फाइनली जो है वी आर रेडी कम्प्लीटली टू सर्व द पीपल। और आपका जो एक सवाल था जो स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और जिस तरह से चौधरी साहब हमारे जो हैं उन्होंने जो हम उनको आश्वासन दिया तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तीसरा सवाल जो आपका था ये है कि धनतोला में ही क्यों चाहते, तो हम लोग ये बिजनेस जो है हम लोग इस्लामपुर या किसी सिटी में करते तो आई एम श्योर के वहाँ पे हम लोगों का जो है रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता है ना। लेकिन रिस्क जो है बेशक लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे इलाके के जो लोग हैं, जो जनता है, जो आवाम है, ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, जो समझ लीजिए कि इस्लामपुर, किशनगंज, सिलीगुड़ी या दूसरे बड़े शहरों में जाके इलाज नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए हम लोगों ने ये जगह चुना। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रिस्क, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रिस्क, बट वी हैव टेकन द रिस्क एंड वी आर श्योर दैट we will get help and support from the people, from our senior leaders of course, and from the legal team of course, and we are sure that we are going to make it one day. And हम लोग जहाँ तक काम कर रहे हैं तो इलाके के लोगों के भलाई के लिए, क्योंकि देखिए इलाके के लोग जब खुश होंगे तो मुझे उम्मीद है कि इलाके का डेवलपमेंट उसमें ज़रूरी है। जिस तरह से अभी नाना ने बोले, इलाके के लोग जब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक उन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो फिर डेवलपमेंट का सपना देखना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बेकार है। तो उसके लिए जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं वो सब कुछ देना ज़रूरी है। तो हमसे जो ये नर्सिंग होम का जो काम हुआ, हम ये इसलिए किए कि ताकि जो इलाके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, खास करके जो सिंगल लोग हैं, जिनके हस्बैंड लोग या जिनके बेटे लोग बाहर रहते हैं, वो लोग सिंगल नहीं जा पाते, कोई उनके साथ नहीं जा पाते डॉक्टर के पास, तो एटलीस्ट ये एक ऐसा लोकेशन है कि वो लोग दिन को 12 बजे हो या रात के 12 बजे हो आराम से आ सकते हैं और पैदल आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लोकेशन है, रिस्क है ऑफ कोर्स, लेकिन वी हैव टेकन द रिस्क एंड वी आर श्योर दैट इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प एंड द पीपल एंड जो लोग हैं इलाके के वो लोग सपोर्ट करेंगे। चौधरी साहब खुद विजिट करना चाहें, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। हम दूसरे लोगों से भी थोड़ा मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ चौधरी साहब आए। थैंक यू।
একটা ব্যাপার ফ্যাসিলিটিস কি আছে আমরা হ্যাঁ আছে এরা আমি একে অ্যাডভাইস করবো একটা বা দুটো টিভি চ্যানেলে একটা অ্যাড বরাবর দিবে, কারণ যে ধানতলা টাউনের কলকাতার ইসলামপুর শহর থেকে দূরে আছে, এই জন্য লোকটা লোকেশন করতে পারবে না ধানতলাটা কোথায় আছে। ইসলামপুরটার পপুলার টাউন, সাবজেনারেল টাউন বলে লোক জানতে অনেক লোক চলে যায়, কিন্তু ধানতলা নতুন জায়গা। এই জন্যে এই যে বলবে যে যে বললো এটা বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোডের হ্যাঁ উপরে বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোডের মধ্যে আমাদের কর্নারের মধ্যে একটা নার্সিংহোম হয়েছে, তার নামে জানি এটা প্রচারটা দরকার আছে, লোক খুঁজে বেড়াবে কোথায় আছে। ঠিক ঠিক থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে এবং এখানে অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আছেন, তার সঙ্গে কথা বলার 2 মিনিট কথা বলার চেষ্টা করবো। খুব সংক্ষেপে বলছি কি আজকে আপনাদের এলাকাতে এই ছোট্ট নার্সিংহোম হলো কেমন লাগছে, খুব শর্টে জানা যায়। আজকে আমরা যা দেখতে পারলাম এটা টুডে ইন্ডিয়া চ্যানেলকে জানাতে চাই। আজকে যেটা দেখতে পারলাম, আমরা ভরসা ছিল না যে এই জিনিসটা যা হলো আজকে, যে আমাদের ভরসা ছিল যে এখানে হবে, কিন্তু আমরা সবাই খুশি, এলাকার লোক খুশি যে যাতে এই কাজটাকে আমরা যেরকম প্রধান সাহেব বললেন যে আমরা পঞ্চায়েত বলি সবাই মিলে যাতে এদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, যাতে আমাদের এটা সাফল্য হয়, যাতে আমাদের এখানে রোগী বা যা কোনো যে এখানে আসে যাতে দূরে না যায়। যেরকম শিলিগুড়ি হলো, ইসলামপুর হলো, একটা যদি অ্যাপেন্ডেক্স হয় এখন যেটা দেখলাম এখানে পরে অ্যাপেন্ডেক্স হয় তাহলে আমাদেরকে ইসলামপুরে যেতে হবে, তখন কিন্তু রিস্ক আছে। কিন্তু এখানে যদি আমরা দেন আসি তাহলে আমাদের কোনো রিস্ক নাই, তার থেকে আর কোনো বড় কথা হতে পারে না। এইটুকু আমাদের আপনাদের থ্যাংক ইউ সাহেব। আমরা কথা বলবো এখানকার যিনি ম্যানেজমেন্টে রয়েছেন নাদির ভাই, তার সঙ্গে কথা বলবো। अब्दुल कादिर भाई, अच्छा बोल रहे हैं क्या क्या फैसिलिटीज है, शॉर्ट में बताइए क्योंकि हमको भी डिटेल्स बताना है। सर यहाँ पे फैसिलिटी लेबोरेटरी का ऑल फैसिलिटी है, अल्ट्रासाउंड है, और कोशिश कर रहे हैं कि सिटी स्कैन का भी यहाँ पे सेटअप बैठाया जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा और मैं बहुत खुश हूँ आज जो आवाम ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह सपोर्ट किया, पॉलिटिकल लीडर जिस तरह सपोर्ट किया, खास करके जावेद भाई हुआ, चौधरी अब्दुल करीम साहब हुआ, हमारे अंचल प्रेसिडेंट इमाजुद्दीन साहब हुआ, समीर अहमद हुआ, इन लोग काफ़ी सपोर्ट किया, तब जाके प्लस पब्लिक का सपोर्ट मिला, बहुत खुशी हुआ। और इंशाअल्लाह हम लोग पैसे कमाने के लालच में, पैसे तो हर तरह से कमाया जाता है, लेकिन ये एक हम लोग खिदमत खल्क जो बोलता है, इसके जरिए इंशाअल्लाह आवाम का खिदमत करेंगे। और जहाँ तक रहा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उन्होंने भी हर तरह से हम लोग का सपोर्ट किया। और ख़ास करके जब हम लोग वो क्या कहते हैं उसको, ये ज़मीन का मसला को लेके इसको कन्वर्सन किए थे, तो DLR इस्लामपुर जो DLR से तो बहुत सपोर्ट किया, और तुरंत हम लोगों का कन्वर्सन भी हुआ। उसके बाद जो ड्रग लाइसेंस है उनका भी काम हो गया, तो इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ঠিক ঠিক বহুত শুক্রিয়া। কী কী ফ্যাসিলিটি আছে এবং কী কী বিষয় আছে সেটা কিন্তু আমরা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করবো। লাইফ লাইন নার্সিং হোম, যেখান থেকে আমরা সরাসরি আপনাদের রয়েছি, জানিয়ে দিই ঠিক ধনতলা যে বাইপাস রোড রয়েছে অর্থাৎ বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোড রয়েছে, সেই বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোডে সেখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন 24/7 এমার্জেন্সি সার্ভিসেস রয়েছে। সেখানে বিশিষ্ট যারা ডাক্তার রয়েছেন তারা কিন্তু রেগুলারলি ভিজিট করবেন। আমরা যদি প্রথম থেকে ধরে নিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো ডক্টর মোহাম্মদ সোহেব আক্তার, উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য হচ্ছে MCH প্লাস্টিক অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি জেনারেল সার্জারির একজন সার্জন ডক্টর সোহেব আক্তার থাকছেন। ডক্টর মোহাম্মদ আক্তার রেজা জেনারেল সার্জারি তিনি থাকছেন। ডক্টর NC ভক্ত MBBS একজন সিনিয়র হচ্ছে গাইনোকোলজিস্ট, এবং তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডক্টর BL মিত্র MBBS DCH FICH USA, ডক্টর ফিরদৌস আফরিন নাতিব ডাক্তার অর্থাৎ BDS ব্যাচেলর ইন ডেন্টাল সার্জারি, ডক্টর মমতা চৌধুরী জেনারেল ফিজিশিয়ান MBBS, ডক্টর নওয়াজ শরীফ MBBS, ডক্টর কিংশুক রয় অ্যানাস্থেটিস্ট এবং ডক্টর পরাগ আগরওয়াল MS MCH নিউরো সার্জারি, তিনি কিন্তু এখানে থাকছেন। লাইফ লাইন নার্সিংহোমের আর কী কী ফেসিলিটি আছে আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি। এখানে হচ্ছে দিবারাত্রি 24 ঘন্টা সেবার পাশাপাশি যেমনটা রয়েছে মেডিসিন ফেসিলিটি, অর্থাৎ তাদের নিজস্ব হচ্ছে ওষুধের দোকান রয়েছে, এবং তার পাশাপাশি আপনাদের বলে দিই এক্স-রে, আল্ট্রাসাউন্ড, ECG এবং প্যাথোলজিক্যাল সমস্ত টেস্টের এই বিষয় কিন্তু রয়েছে। আমি একটু আমার সহপ্রতিনিধিকে হলো বাইরেটা দেখানোর জন্য লোকেশন এবং তার পাশাপাশি যে বিষয়টা রয়েছে সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করবো।
উদ্বোধন উপলক্ষে 1 টাকা রেজিস্ট্রেশন দিয়ে এখানে কিন্তু স্বনামধন্য তাদের কাছে কিন্তু তারা রোগী দেখাচ্ছেন। আপনাদের জানিয়ে দিই, উই সেভ লাইভস অ্যাট লাইফলাইন নার্সিং হোম, এই ট্যাগলাইন দিয়ে কিন্তু আজকে একটা শুভ উদ্বোধন হলো। আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাবেন যে তাদের যে ফার্মাসি, সেই ফার্মাসি কিন্তু এখানে চালু হয়ে গেছে এবং তার পাশাপাশি আজকে 1 টাকা নামমাত্র রেজিস্ট্রেশন দিয়ে তাদের কিন্তু আজকে হেলথ চেকআপ ক্যাম্প হচ্ছে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে ফার্মাসি, লাইফলাইন ফার্মাসি, যেটা এই নার্সিং হোমের হচ্ছে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। সেখানে সমস্ত প্রকারের যে ব্র্যান্ডেড ওষুধ, সেই ওষুধগুলো কিন্তু এখানে উপলব্ধ হবে। আমরা দু একজন পাবলিকের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি ডাক্তারদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো, যারা যারা আজকে এখানে এই পরিষেবাটা রয়েছে। वो चौधरी सब जा रहे थे। एक ही चीज को मतलब बाकी डॉक्टर सबसे बात करनी है। फैसिलिटीज तो बहुत सारे आप लोग उपलब्ध कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहेंगे और मैनेजमेंट के बारे में कहेंगे। सर्विसेज 24/7 लिखे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 24/7 ही सर्विसेज होंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा कोशिश रहा है यही जो RMO फैसिलिटी है ये 24/7 है, लेकिन स्पेशलिस्ट जो होगा डॉक्टर वो अकॉर्डिंग टू जो सिटिंग टाइम है वही सीट अवेलेबल होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग का जनरल सर्जन, उसके बाद MD, उसके बाद हर तरह का गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर भक्तों से भी बात होगी, सबको शेड्यूल टाइम दिया हुआ है और उसके शेड्यूल टाइम में सब कुछ अवेलेबल है। पैथोलॉजी, एक्सरे, ECG और साथ ही साथ आपका अल्ट्रासाउंड, ये सब के सारे सुविधाएं, ये सारे सुविधा होंगे, लेकिन हम लोग का जो पैथोलॉजी है वो तो फिलहाल अभी मौजूद है, लेकिन PhD के लिए कुछ लाइसेंस का ज़रूरत होता है, वो गवर्नमेंट इतना आसानी से देता नहीं है, लेकिन हम उसमें काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो अप्रूवल मिल जाएगा तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम कौशिक है। यहाँ किस पोस्ट पे हैं? हम एक्चुअली जो अनवर भाई हैं और ये है हम लोग पूरा जो इंटरनल जो मैनेजमेंट टीम है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं अभी जो सर्जन है सबसे बड़ी बात है कि रूरल एरिया में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत चैलेंज है। तो आप एज ए डेंटिस्ट जहाँ तक जाते हैं, PDS यहाँ परिसेवा देने के लिए आज मौजूद हुए हैं और रेगुलरली रहेंगे, क्या कहेंगे इस अवसर पर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस एरिया के लिए, बिकॉज यहाँ पे आसपास में कोई भी अच्छा नर्सिंग होम नहीं था, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ के लोगों के लिए भी, आसपास के, और जो भी डॉक्टर की टीम है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, बिकॉज सारे अच्छी टीम है, सारे सिलीगुड़ी से भी डॉक्टर्स आ रहे हैं, आसपास से सारे जितने भी हैं, और ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अचीवमेंट है सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे हैं, उनसे भी हम थोड़ा मुखातिब होंगे। डॉक्टर अख्तर रजा, आपको सिलीगुड़ी में लाइन लगा के देखना पड़ता है, लेकिन आज रूरल एरिया में आप सर्विस देने के लिए तैयार हैं और आए हैं अपने इलाके के दिगर जो आवाम है उसको सर्विस देने के लिए। इस शुभ अवसर पर, उद्घाटन के शुभ अवसर पर क्या वार्ता रहेगा आपका, क्या मैसेज रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन लोगों को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि एक अच्छे हेल्थ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है, और ख़ास करके मैं अनवर भाई इन लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। रही सवाल के यहाँ पे अब सर्विस देने का, तो इंशाल्लाह हम लोग से जितना भी जो भी फैकल्टी हैं इंशाल्लाह अपने तरफ से बेहतर सर्विस देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है, देखिए जहाँ कह दें कि जो रिनाउंड डॉक्टर होते हैं उनका कहे तो पानी का जो ड्रॉप होता है वही दवा होता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले ही कोई बीमारी होने के बाद ही वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं, मेंटल सपोर्ट जरूरी होता है। मेंटल, ये सबसे पहली बात है कि पेशेंट को भरोसे में लेना बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंट का सबसे पहले जो रेपो बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, उनको आधा अपनी बारी तो उसी से ही ठीक हो जाता है पेशेंट का। अगर पेशेंट से आप पोलाइटली बात करेंगे उससे भी वो बहुत सेटिस्फाइड होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट का एक पार्ट है ये। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। हम बात कर रहे थे सीधा डॉक्टर फिरदौस आफरीन से और डॉक्टर
अख्तर रजा से, जो कि सीनियर सर्जन है, जिनको सिलीगुड़ी आप लाइन लगा के देखते हैं, अभी धनतोला में ही उपलब्ध है और आज तो नॉमिनल फीस में ये मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आप उसी का नज़ारा देख रहे हैं लाइव सीधा न्यूज़ फॉर इंडिया में। और यह और क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उसको भी हम आपके सामने रूबरू कराएंगे। थैंक यू। जबरदस्त ফ্যাসিলিটিস আছে, আমরা একটু যিনি ওনার রয়েছেন তার সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়া। কী কী ফ্যাসিলিটিস তো আমরা জানিয়ে দিয়েছি, পাশাপাশি আপনাদের এখানে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা সেটা যদি আপনি দেখিয়ে দেন। আমাদের এখানে যেরকম সব কিছু ধরনের ফেসিলিটি আছে, আলট্রাসোনোগ্রাফি আছে, তারপর যেমন আপনার ইসিজি আছে, তারপর কিছুদিন পর আমরা ভাবছি যে এমআরআই মেশিনে অনেক কস্টলি হয়, তো ওটা আমরা ভাবছি যে পরবর্তীকাল যখন আমাদের এটা নার্সিংহোমটা রানিং হওয়ার পর আমরা ভাববো আর কি, যখন রানিং হয়ে যাবে তখন আমরা ভাববো যে ওই মেশিনটা আমাদের এখানে কস্টলি অনেক, তো ওটা আনতে একটু টাইম লাগবে, ওটা আমরা এখানে এমআরআই ব্যবস্থা করবো। এমআরআই, সিটি স্ক্যান যতগুলো আছে আমাদের চাই যে মানুষ যেন এখান থেকে আমাদের ইসলামপুর থেকে যেন শিলিগুড়ি না যায়, এখানে আমাদের সব বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা হয়, সব ডাক্তার হয়, যে নিউরো সার্জন হলো, তারপর অর্থোপেডিক হলো, গাইনোকোলজিস্ট হলো, তো সব ডাক্তারকে আমরা সব পেশেন্ট যে আমাদের এখানকার আছে গ্রামে শিলিগুড়ি না যায় যেন আমরা এখানে চিকিৎসা দিতে পারি। আর আমরা চাই যে আমাদের হসপিটাল থেকে যে কোনো চিকিৎসা হয় আমরা চিপ অ্যান্ড বেস্ট রেটে দিতে চাই। আর আমাদের এখানে সবথেকে হলো কাজ যে মানুষ অনেক দূরে যেতে হবে, তো অনেক খাটনি বেড়ে যায়, তো আমাদের এখানে এলাকায় আছে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, আর আমাদের সূর্যাপুরি কমিউনিটিতে এটা ফার্স্ট হসপিটাল, মানে এই গ্রামে এলাকাতে, মানে পুরো গোয়ালপাড়া এখানে কোনো হসপিটাল নেই। আমাদের ইসলামপুর ডিস্ট্রিক্টে হলো এই হসপিটালটা আর কি আমাদের উত্তর দিনাজপুরে একটা আর কি গ্রাম এলাকাতে, তো এটার জন্য আমরা অনেক খুশি তো আছি এখানে। আর আমি বলবো যে মানুষ বিভিন্ন এই রিপোর্ট যে আছে সবার কাছে যায়, আর সবাই দেখে এখানে আমাদের নার্সিংহোমে এখানে আসে, আমরা এখানে ভালো যত হয় ভালো ট্রিটমেন্ট দিতে পারি আমাদের এটা। আমরা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাক্তার শোয়েব আখতারের জন্য চেম্বার করা হয়েছে এবং এখানে আরেকজন ডক্টর মমতা চৌধুরী রয়েছেন फिजिशियन। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप यहाँ एक रूरल बेल्ट में आके यहाँ सेवा देने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप मेरे स्टूडेंट में से हैं, आपका पहचान हो गया, लेकिन कंग्रेचुलेशंस दैट यू हैव जॉइंड लाइफलाइन नर्सिंग। थैंक यू सर। सो व्हाट विल बी योर मोटिव टू सर्व द रूरल पीपल? देखिए यहाँ का जो मतलब इस एरिया में खुला है तो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है हम लोग के अनवर भाई ने कि मतलब पब्लिक का सोच के, क्योंकि बहुत दिक्कत होता था कि मतलब पेशेंट को डॉक्टर दिखाना और क्रिटिकल कंडीशन में वो लोग सिलीगुड़ी पहुँचते थे, तो मतलब जहाँ हमें बचाना मुश्किल होता था। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि मतलब यहाँ मतलब पेशेंट को एक इमरजेंसी केयर मिलेगा ताकि वो लोग सपोर्टिव केयर मिल सके एंड दे कुड सर्वाइव फॉर फर्दर। तो अच्छी बात है कि मतलब रूरल एरिया में इतना अच्छा हॉस्पिटल खुला है। Hope you all the best. और as a teacher of yours, I am very proud that you are starting over here. Thank you very much. चलिए ऊपर थोड़ा दिखाते हैं आपको। डॉक्टर ममता चौधरी से हम रूबरू हुए हैं। फैसिलिटीज हैं आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में, वो भी आपको थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्पेसेस आपका जगह है जहाँ बेड्स वगैरह लगाया जाए। Respect those who care for you and your loved ones. There is no excuse for physical violence or verbal abuse against healthcare workers. Please treat our staff with the same respect you would expect to receive. आप देख सकते हैं वेल स्पेसेस एंड आप देख सकते हैं वेल डेकोरेटेड ये रूम्स तैयार किया गया है जहाँ की आप देख सकेंगे कि नर्सिंग स्टेशन है और साथ ही साथ ऑफिस, और कह सकते हैं एक रूरल एरिया में भी एक ग्रीन जो एनवायरनमेंट होता है उस ग्रीन एनवायरनमेंट में इस नर्सिंग होम का आज आगाज हुआ। इसी तरह से सबसे पहले तो अपना जानकारी परिचय देंगे। मेरा नाम शेख मोहम्मद अनवर है एंड मैं यहाँ का ऑनर है। ऑनर नहीं कह सकते, हम तो सब ऑनर ही है, लड़के ही हैं, ठीक है ना। बाकी मैं दिल्ली कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी डायलिसिस का यूनिट सेटअप प्लानिंग चल रही है, उसके लिए बहुत जल्दी ये चीज़ क्लियर हो जाएगा।
और बाकी बस बहुत पहले से ही एक प्लानिंग थी और कहीं ना कहीं एक माइंड में इंटेंट था कि भाई यहाँ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द के लोग जो है बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। ये जो फैसिलिटी यहाँ आसपास में नहीं है, तो मुझे यहाँ एक होना चाहिए कम से कम। सिलीगुड़ी जाने की ज़रूरत ना हो रहा है कि जाने की डायलिसिस बहुत अहमियत रखता है क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट होते हैं वो ऐसे ही नाजुक होते हैं, नाजुक हालत में, और डिस्टेंस और टाइम उन लोगों के लिए बहुत फैक्टर होता है। तो होप टू ऑल द बेस्ट कि आप यहाँ डायलिसिस का यूनिट सेटअप करें और लोगों को सेवा दें। थैंक यू होप यू ऑल द बेस्ट। जोरदार आप देख सकते हैं ओटी भी यहाँ तैयार है, आप देख सकते हैं एकदम वेल इक्विप्ड ओटी है जिसका तैयार है, आप देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर। हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। स्पेसस वेल इक्विप्ड ओटी है जहाँ ऑपरेशन के लिए इंतजाम रखा जाएगा। और एक बार नीचे से पब्लिक के थोड़े जो रिएक्शंस हैं, और आप देख सकते हैं फायर फाइटिंग के जो फैसिलिटीज़ और इमरजेंसी एग्जिट, यानी जो सारे सुविधाएं एक सिटी में एक वेल इक्विप्ड नर्सिंग होम में आप देखते हैं उसका पूरा इंतजाम यहाँ रखा गया है। चलिए पब्लिक से थोड़ा रिएक्शन से लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ फायर फाइटिंग जो एक्सटिंग्विशर्स हैं उसको भी रखा गया है, और पब्लिक से कुछ रिएक्शंस लेके हम यहाँ से विदा लेंगे। अपने साहब कहते हुए कहूँगा कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ जो आज नॉमिनल सिर्फ ₹1 का फीस दे करके यहाँ लोग जो रिनॉन डॉक्टर्स है उसका इलाज का फायदा ले रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। बात करेंगे जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। আজকে ডাক্তার দেখাতে এলেন এখানে বাড়ির পাশে নতুন নার্সিং হোম হলো, অনেক কাগজপত্র নিয়েছেন, ডাক্তার দেখালেন? এখনো দেখাননি, দেখাতে এসছেন ডাক্তার এখানে? ঠিক কেমন লাগছে? कैसा लग रहा है? डॉक्टर दिखा पा रहे हैं घर के करीब, कैसा लग रहा है? ठीक आप दिखाएंगे डॉक्टर? डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, और पास में हुआ बहुत ही हमारे लिए बड़ी नेमत है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले बारकट्टा के हैं। अच्छा, मेरा लड़का यहाँ बच्चा पढ़ाता है। अच्छा, आपको कैसे खबर, लड़के के जरिए खबर मिला? हमारे लड़के के जरिए खबर मिला, हमारे यहाँ गाड़ी गई थी। अच्छा, तो इसलिए हम कहा कि आईवी टेस्ट होगा, अच्छा, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ हम लोगों के लिए सुविधा है। करीब है, ठीक, करीब से इकट्ठा हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट थे, या कह सकते हैं यहाँ के जो इनोग्रेशन पार्ट जो कहते हैं चौधरी साहब यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और काफ़ी तादाद में इलाके के लोग हैं, ये अपने समस्याएं भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ स्टूडेंट का। लेकिन जाते जाते एक बार आपको बता दें कि धनतोला का जो बाईपास, बेंगोल टू बेंगोल बाईपास रोड है, अगर आप नेशनल हाईवे से देखें तो तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी में ये लाइफ लाइन नर्सिंग होम, एक वेल इक्विप्ड सेटअप विथ एक्सरे, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ECG, ये सब फैसिलिटी के साथ लाइफ लाइन नर्सिंग होम का 24/7 इमरजेंसी फैसिलिटी के साथ यहाँ से उद्घाटन हुआ। देखते रहिए न्यूज़ टूडे इंडिया, और अपने इलाके के आवाम जो है इन लोगों तक ये खबर पहुँचाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और लास्ट में और एक बार आपको बता दें कि ये कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये एक प्रमोशन है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट को आप न्यूज़ के हैसियत से नहीं देखें, क्योंकि एक फ़र्ज़ बनता है एज ए मीडिया पर्सन कि जो लोग इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, या फिर अगर इंस्टीट्यूशन को खोल के लोगों को बड़ी सेवा या सर्विस देना चाहते हैं, ये खबर इन लोगों तक पहुँचे। जुड़े रहिए न्यूज़ टूडे इंडिया के साथ, अपने सह प्रतिनिधि दीप्त विश्वास के साथ। मैं जब्बार अली, न्यूज़ टूडे इंडिया के लिए धनतोला बाजार से।